નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી. હું છું આપણી સાથે ટેસ્ટા. આમ તો અલગ અલગ કલાકારો સાથેની મુલાકાત મહત્વની જણાઈ આવે છે. આજે એવા મૂવીના કલાકારો સાથેની મુલાકાત છે જે તમને હંમેશા મનોરંજન પમાડતા હોય તેવા કલાકારો છે. એક એવી કલાકાર જે ગુજરાતમાં તો પોતાનો ડંકો વગાડે છે, પરંતુ આવનારા સમયમાં હરણફાળ ભરતા દેખાઈ રહ્યા છે. જી હા, એવા જ કલાકારો આપણી પાસે છે અને એમની પાસેથી ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરવાઈ રહેશે, કારણ કે આજે મોદીજી કી બેટીની ટીમ આવી પહોંચે છે કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના સ્ટુડિયોમાં. એક એવી કલાકાર જે પ્રકારે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડંકો વગાડ્યો છે, એક એવી કલાકાર કે જેને હંમેશા ગુજરાતીઓને લઈને કંઈક કરવું તેમના મનમાં તો દેખાઈ જ રહ્યું છે. તે ઉપરાંત એક એવા કલાકારો જેઓ અગ્રેસર તો છે જ, તેમાં પણ ખાસ કરીને તેમને હવે નવીનતા એટલે કે લોકોને વધુ પીરસવું છે, લોકોને વધારે આનંદ આપવો છે, મનોરંજન પૂરું પાડવું છે. એક એવી જ ફિલ્મ છે જેનું નામ ખૂબ જ ચર્ચામાં જોવા મળ્યું છે. જી હા, એવી જ ફિલ્મ છે, કારણ કે મોદીજી કી બેટી. તેમાં ખાસ કરીને આ જે અટક છે ને તેને લઈને ઘણી બધી ચર્ચાઓ વેગવંતી થઈ છે, કારણ કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું નામ પણ મોદીના કારણે ઓળખાય છે. ત્યારબાદ આવા કલાકારોની જે પ્રકારે કહેવાય છે ને, એક્ટરનું જે સરનેમ છે ને એ પણ મોદી જ છે. આપ ઓળખી ગયા હશો કે કોની ચર્ચા કરું છું, અને આપ ટીવી સ્ક્રીન પર દ્રશ્યો પણ જોઈ શકો છો. જે એવા જ આ કલાકારો છે, ઉમદા કલાકારો છે જે ઇન્ડસ્ટ્રીને કંઈક પીરસી રહ્યા છે, ઇન્ડસ્ટ્રીને કંઈક આપી રહ્યા છે, તેવા આ કલાકારો છે જેમણે કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આવીને ખાસ કરીને સૌ કોને આનંદ આપ્યો છે. તેમના જે બાબતોમાં જણાઈ આવ્યું છે ચર્ચા તેમણે જે અલગ અલગ કરી છે, કારણ કે આ શો તેમનો શેડ્યુલ એટલે ખૂબ જ ટાઈટ હતો, પરંતુ તેમને આજે અહીંયા આવીને ખુશી વ્યક્ત કરી છે. આ એક ખૂબ જ અમારા માટે એક આગવી બાબત જણાઈ આવી છે. આજે આ ટીમ જ્યારે કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના સ્ટુડિયોમાં આવે છે તે પહેલાં તેમણે મુલાકાત કરીને એના દ્રશ્યો પણ આપે જોયા છે. હવે વધુ સમય નહીં લઈએ, તેમની પાસેથી જ ચર્ચા કરીશું, કારણ કે આજે એવા કલાકારો સાથે ચર્ચા ખાસ કરીને मेरी तरह जिहादी बनो, एक मौका दे दे। एक रोज ऐसा काम करेंगे। मैं मोदी जी की बेटी। हिंदुस्तान में 2000 के नोट की तरह ही रातों रात पैदा हुई मोदी जी की बेटी। अगर ये हमारे पास हो तो सज्जाद भाई तो क्या पूरा हिंदुस्तान नाचेगा हमारे। सलमान खान बजरंगी भाईजान में अपनी जान पे खेल के मुन्नी को छोड़ने पाकिस्तान आए थे। हम भी तो अपनी जान पे खेल के तुम्हें पाकिस्तान ही ले आए हैं। ये पाकिस्तान की इज्जत का सब। तुम किसको उठा के लाए हो तुम्हें पता है? मोदी जी की बेटी को। तो क्या समझ के लाए? उसके बदले में तुम्हें क्या मिलता? कश्मीर मांगने की सोच रहे थे। अब अगर मैं इतनी जल्दी वापस चली गई ना, ये मीडिया वाले इसे ना चीप पब्लिसिटी स्टंट मानेंगे। ये है मोदी जी की बेटी। बंदूकें सजी है आपकी शादी, कुछ दिन तो गुजारूं पाकिस्तान में। ये है मोदी जी की बेटी। ये है मोदी जी की बेटी। ये है मोदी जी की बेटी। હવે વધુ સમય નહીં લે, પરંતુ તેમની સાથે ચર્ચા કરીએ, કારણ કે આતુરતાથી રાતો જોઈ રહ્યા છે તેઓ પણ. અવની મોદી જોડાઈ ગયા છે, તે ઉપરાંત વિક્રમ કોશર અને આ ફિલ્મના ડિરેક્ટર એટલે કે એડીસી, આ ત્રણે ત્રણ જોડાઈ ગયા છે. આપ ત્રણે ત્રણનું સ્વાગત છે કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીના स्टूडियोમાં. सौप्रथम अवनी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जैसे फिल्म है, गुजरात से बॉलीवुड की आपकी सफ़र, क्या कहना चाहते हो? क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता। हाँ, बहुत लंबा रास्ता। मैंने आई होप कि ये दर्शकों तक ये बात पहुंच रही है कि एक गुजरात की एक लड़की ने काफ़ी मेहनत की है बॉलीवुड में अपने कदम जमाने के लिए, और अपने लोगों का सहयोग देना बहुत ज़रूरी बनता है। व्हेन वी एनकरेज आवर पीपल, तो और भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। तो पहले ड्रामा में काम किया, फिर साउथ की फिल्में, फिर मॉडलिंग, और फिर बॉलीवुड की फिल्में, और अब जाके फाइनली मोदी जी की बेटी। तो बड़ी लंबी सफ़र रही, लेकिन आप लोगों ने हमेशा मुझे साथ दिया है, प्यार दिया है, तो हमेशा आगे भी देते रहिए। और हमारी फिल्म मोदी जी की बेटी को ज़रूर देखने जाइए 14 अक्टूबर को। मतलब 14 अक्टूबर रिलीज़ भी कर दिया गया है, यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि ये 14 अक्टूबर को आप
देखने जाना ज़रूर ही। फिल्म के बारे में मैं जानना चाहूँगी क्योंकि ये फिल्म का डायरेक्शन वाइज बहुत ही बढ़िया है। तकरीबन देखा गया एक एक सीन में बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशंस भी किया गया हुआ है। तो विक्रम, आप इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपने जब ये फर्स्ट फिल्म सुनी तो आपका क्या रिएक्शन था? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन इन दिस फिल्म? जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैं तो खुशी के मारे उछल उठा था क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है। मुझे सबसे अच्छी बात इस फिल्म में लगी थी कि ये रेगुलर कहानियों की तरह एक कहानी नहीं थी। इसके अंदर कोई ऐसा हीरो हीरोइन और कोई ऐसा लव ट्रायंगल या लव एंगल नहीं था, जो कि बहुत ही कॉमन तरीका है हमारी फिल्मों का, जो इस तरह की फिल्में हम बॉलीवुड में देखते आ रहे हैं। तो इसकी कहानी थोड़ी हटके थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत कैची फिल्म थी। ये एक फार्सिकल कहानी है। फार्स एक फॉर्म है, एक्टिंग का एक फॉर्म है, परफॉर्मेंस का, जो लोग थिएटर करते हैं या जिन लोगों ने कभी गोविंदा की पिक्चरें देखी हो पुरानी, जैसे दूल्हे राजा वगैरह, वो फार्स कहलाता था, जहाँ पर मस्ती मजाक भी होता था और सिचुएशन में आप बिलीव भी करते थे और नहीं भी करते थे, क्योंकि परफॉर्मेंस भी होती थी। तो ये उस जोन की एक फिल्म थी और मतलब काफ़ी समय बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट सामने आई है और किसी भी एक्टर के लिए बहुत एक्साइटिंग होता है कि किसी नए फॉर्म में अगर वो अपने आप को प्रस्तुत कर सके। तो मेरा तो खैर ये रिएक्शन था। अवनी, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने फर्स्ट टाइम ये स्टोरी सुनी? तब आप क्या सोच रहे थे, क्या मन में आया था? स्टोरी मैंने सॉरी आई वांट टू टेक दिस अप। स्टोरी सुनी नहीं थी, इन्होंने सुनाई थी, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो लिखी भी इन्हीं की गई है जी, और एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस है, जहाँ से ये फिल्म पूरी इंस्पायर हुई और एक फिक्शनाइज की गई। तो हम लोगों ने सुनी थी, एज अ डायरेक्टर मैंने सुनी थी और एज अ राइटर मैंने सुनाई थी। बट ये कॉन्सेप्ट जो है उसके पीछे मैं कहूँगी कि हमारे देश की मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और आप लोगों ने एक छोटी सी मजाक में कही गई जो एक न्यूज़ थी, और एक रिपोर्टर ने मुझे पूछा था कि आप मोदी है, आप भी गुजराती है, तो कहीं आप मोदी जी की बेटी तो नहीं है ना? हमें पता चला, हमें संभाल के रहना पड़ेगा आपसे। तो ऐसे फिर मैंने उनको बहुत ही उसी तरीके से, उसी सरकाज़म में उन्हें जवाब दिया कि आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं तो मोदी जी की बेटी हूँ ही, और देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी है। तो उन्होंने मेरा फर्स्ट हाफ जो था स्टेटमेंट का, वो बड़े ही मसाले परोस के उसके अंदर डाल के चटपटी खबर बना दी, देश भर में वायरल हो गई वो, और मैं बन गई रातों रात मोदी जी की बेटी। और वो उस हद तक बन गई कि मैं दूसरे किसी इवेंट के लिए भी जाती थी या दूसरा कोई फंक्शन भी होता था तो मुझे मोदी जी की बेटी आ गई है, मोदी जी की बेटी दिखी इस जगह पे, इस फंक्शन में, ऐसे संबोधित किया जाता था। तो एक कहानी का बेस जो है ना, उसके लिए मैं इंडियन मीडिया की आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे मोदी जी की बेटी बनाया और आपकी वजह से मोदी जी की बेटी फिल्म बन रही है। मतलब आपने तभी सोचा था कि ये ऐसी स्टोरी लिखा जा सकता है? नहीं, वो तो ये तो 2014 की बात है जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसके पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा कि मुझे लगा कि ये कुछ गिमिक है मीडिया का, वो थोड़े दिनों में बंद हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन बार बार होता रहा। और उस हद तक हुआ कि एक्चुअल में मुझे बहुत सारे लोग आके सवाल पूछते थे, क्योंकि मीडिया की उतनी पावर है कि अगर आप कोई चीज़ टीवी पे सुनते हैं या अखबार में पढ़ते हैं तो लोग उसे सच मान लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि बहुत मासूम लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे, उन्हें गॉसिप और न्यूज़ के बीच का डिफरेंशिएशन नहीं पता। अखबार में गॉसिप भी छपती है, टीवी पे गॉसिप भी चलाई जाती है। तो ये लोग जो है वो इस गॉसिप को सच मानने वाले लोग मुझे खुद मिले। और एक बार एक पाकिस्तानी फिल्म की मुझे प्रपोजल आया था, 2017 की बात है, 16 या 17, और मैंने कहा क्यों नहीं, अगर फवाद खान, माहिरा खान यहाँ काम कर रहे हैं तो मैं भी पाकिस्तानी फिल्म में काम कर सकती हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर अच्छी कहानी है तो। फिर वो प्रोड्यूसर बोले कि हम आपको वहाँ भेज तो दे पाकिस्तान, लेकिन फिर आप वापस नहीं आ पाई आपके सरनेम की वजह से, तो हमें जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और वो टाइम पे मुझे ये थॉट आया, क्योंकि उन्होंने बोला यार देखो, आप तो हर जगह मीडिया में भी आपके बारे में ऐसा लिखा गया है, वहाँ पे भरोसा नहीं है, पाकिस्तान में कोई सच भी मान लेगा इसको। नाउ दैट वाज द टाइम कि जहाँ पे मुझे ये सीड आया और मैंने लिखा कि हाँ, मान लो अगर ऐसा होता है कि मैं पाकिस्तान पहुंच जाती हूं और इस कंट्रोवर्सी को कोई सच मान लेता है तो क्या होगा। तो यही कहानी को हमने आगे बढ़ाया, फिक्शनल कैरेक्टर्स और पूरी फिक्शनल सिचुएशंस को क्रिएट किया। और मैंने एडी सर को पहले एक प्लॉट सुनाया कि सर ऐसा ऐसा कुछ बन सकता है क्या, मेरे दिमाग में आया, टाइटल ये होगा क्योंकि मोदी जी की बेटी ही उस रीज़न बिहाइंड दिस एंटायर सिचुएशन वाज दिस।
तो उनको वो बोलते हैं कि ये बहुत बढ़िया माइंड ब्लोइंग आइडिया है, तुझे ये डेवलप करना चाहिए। आई सेड नहीं, मैं राइटर नहीं हूँ, आप लिखवाओ किसी और से। तो उन्होंने लिखवाए भी शायद 2-4 राइटर्स से, उन्हें नहीं मज़ा आया। फिर उन्होंने मुझे वापस बोला कि आई थिंक यू शुड ओनली राइट दिस, और फिर हमने लिखने की शुरुआत की, और फिर तब जाके एक अच्छी स्क्रिप्ट बनी जिसके ऊपर से आज फिल्म बन चुकी है। आज फिल्म तो बन चुकी है, पर इसके पीछे जहाँ शूटिंग की गई थी उसके बारे में बात करेंगे। एडीसी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये शूटिंग तो बहुत ही जबरदस्त है। तो स्क्रिप्ट की जो डिमांड थी वो थी कि इस फिल्म को पाकिस्तान में शूट किया जाए, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो जाहिर बात है फिल्म की शूटिंग के लिए हमें पाकिस्तान जाना पड़ा, और वो पाकिस्तान हम लोगों ने अपने खूबसूरत हिंदुस्तान की वादियों में, हिमाचल प्रदेश में, मनाली में बनाया, जो कि हमारे आर्ट डायरेक्टर्स और हमारे प्रोडक्शन और सेटिंग बॉयज़ सब ने एक मेहनत करके वो प्रॉप्स और बहुत सी चीज़ें इकट्ठी की गई, जो ले जाके मनाली में वो सेटअप और वो पूरा माहौल एक पाकिस्तान का क्रिएट किया गया। सो द एंटायर शूटिंग हैज़ बीन डन इन मनाली इन हिमाचल प्रदेश। वी हैड अ 32 days फन फिल्ड रॉकिंग काइंड ऑफ अ टाइम व्हेन वी वर डूइंग दिस फिल्म, एंड ये बहुत शैतानियाँ भी करते थे, सब कुछ होता रहा, लेकिन जो फिल्म में मज़ा आएगा देखने का आप लोगों को, वो मज़ा मुझे ये फिल्माते हुए आया था। इट वॉज रियली फन डूइंग दिस फिल्म। फिल्म में तो बहुत ही मज़ा आया हुआ दिखता ही है। अवनी जी, फिल्म में से कौन सा आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग है? सॉन्ग 3 गाने हैं फिल्म के अंदर जी। और मैं उन तीनों गानों का हिस्सा हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने तीनों गानों में डांस किया है। फेवरेट आई थिंक अभी तो खैर टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ है और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो टाइटल ट्रैक, क्योंकि वो जैसे आई रिमेम्बर जब हम लोग बैक स्टेज बात कर रहे थे तो आपने बहुत बड़ी शरारती किस्म की लड़की लगती है ये, या बड़ी बोल्ड या बिंदास किस्म की लड़की लगती है। तो टाइटल ट्रैक में जो डिस्क्रिप्शन है कि मोदी जी की बेटी कैसी है, वो शायद मेरी रियल लाइफ पर्सनालिटी से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, तो मुझे ये अच्छा लगता है। व्हेनेवर समवन ट्राइज टू मेस विथ मी, आई ऑलवेज से सावधान, मैं हूँ मोदी जी की बेटी। एग्जैक्टली, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि रियल और रियल लाइफ पे बोथ आर वेरी डिफरेंट, राइट? आपकी लाइफ में क्या है, बोथ आर सेम या डिफरेंस? नहीं, ऑफ कोर्स मतलब जो मेरी रियल लाइफ पर्सनालिटी है, मेरा ये मानना है, मैंने काफ़ी सारे एक्टर्स से सुना है, विक्रम भी शायद रिलेट कर पाएंगे, कि आपकी जो रियल लाइफ पर्सनालिटी होती है वो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं झलकती ज़रूर है। एज अ एक्टर आपका काम यह है कि उसको किस हद तक आप दबा सकते हैं और आप उसको कम्प्लीटली भूल के आपके किरदार में घुस जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप रोल क्या कर रहे हैं, आपका कैरेक्टर क्या है। और अब तक मैंने जो भी बाकी सारी फिल्में की है उसमें जो मेरे कैरेक्टर रहे हैं उन सब में मैं अपनी रियल लाइफ से अगर इफ़ आई एम प्लेइंग अ मॉडर्न टुडेज गर्ल जो कि इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, बिंदास है, यू नो, डेडिकेटेड है, तो शायद वो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी वैसे ही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो झलकता है। मोदी जी की बेटी के अंदर मैं एक्ट्रेस अवनी मोदी का ही रोल कर रही हूँ, जो कि एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाती है और वो पाकिस्तान पहुंच जाती है। सो नो डाउट आई हैड टू प्ले माई सेल्फ, एंड वो सिचुएशन सारी फिक्शन है, कहानियाँ सारी जो आगे की है वो सारी इमेजिनरी है, तो कैरेक्टर जो है वो बहुत ही रियल लाइफ से मिलता जुलता है। कि अगर, और मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि मोदी जी की बेटी इज़ नॉट अबाउट जस्ट वन गर्ल अवनी मोदी। मोदी जी की बेटी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टुडेज ऑल डॉटर्स ऑफ इंडिया। भारत की हर वो बेटी जो साहसिक है, निडर है, सच का सामना करना जानती है, सच्चाई के लिए लड़ना जानती है और अपने सपने पूरे करने की हिम्मत रखती है, वो हर बेटी मोदी जी की बेटी है। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग द एंटायर नेशन। और उस वक्त जब अगर मैं पाकिस्तान में जाके अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मुझे ले जाया जा रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए एक लड़की के अंदर जो हिम्मत, जो ताकत होनी चाहिए, वो सब मोदी जी की बेटी में है। विक्रम, आप इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अवनी ने बहुत सारी बातें की है, एंटायर नेशन के लिए बताया जा रहा है कि हर एक जो होती है डॉटर वो पीएम मोदी की डॉटर कहा जा सकता है, इस तरीके से उन्होंने जनाया। उन्होंने कहा है, आप क्या कहना चाहते हैं फिल्म के बारे में या मोदी जी की बेटी के बारे में? बोथ आर जी हाँ, इस फिल्म की मुख्य कलाकार है और फिल्म जिसके ऊपर बेस है
वो मोदी जी की बेटी के ऊपर ही बेस्ड है। ओवरऑल फिल्म जो है वो काफ़ी एक बहुत प्यारी बात है फिल्म के अंदर। फिल्म बहुत अच्छे तरीके से दर्शाती है कि देश जो होते हैं इट इज़ फॉर पीपल एंड बाय पीपल, यानी कि देश लोगों के लिए होते हैं, लोगों से होते हैं। इसके अंदर ये फ़र्क नहीं होता देश में कि आप हिंदुस्तान से हैं या पाकिस्तान से हैं या इंग्लैंड से हैं। सो इम्पॉर्टेंट जो है वो इंसान होता है, और इंसान की जो बेसिक इमोशन है, सबसे पहली इमोशन जो इंसान की निकलती है वो प्यार निकलती है। अगर आप छोटे से बच्चे को भी देखें तो अगर उसको क्या चाहिए होता है, उसको बस ये चाहिए होता है कि उसकी माँ उसे प्यार से अपने बिल्कुल ऐसे हग करके उसको अपने पास रखे जी। सो वही एक बेसिक इमोशन है जो कि इंसान की प्राइमरी इमोशन होती है। तो इस फिल्म ने इन्हीं सब चीज़ों पे बहुत मतलब केंद्रित किया है ध्यान हमारा, कि ये लड़ाई झगड़े बाकी सब जो चीज़ें हैं ये तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की वजहों से हैं। अलग अलग लोगों की मंशाएं, अलग अलग लोगों के डिज़ायर्स, अलग अलग चीज़ों के बारे में मतलब आप सियासी मुद्दे बना दिए गए हैं। सियासी मुद्दे होते नहीं हैं। कोई भी बातचीत हो, कोई भी चीज़ हो, दो लोगों के बीच में अगर मतभेद है कुछ किसी भी तरीके का, तो वो बातचीत से, प्यार से, एक दूसरे की मदद करके सुलझाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ फिल्म आपको ओवरऑल बेसिस पे देती है आपके साथ ले जाने के लिए। जो आपका कैरेक्टर है जी, वहाँ पे आप मतलब आपको भी वही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ बोथ आर डिफरेंस। व्हाट यू थिंक, व्हाट योर चॉइस? नहीं, मैं सवाल आपका समझा नहीं, फिर से बताइएगा। रियल और रियल लाइफ बोथ आर वेरी डिफरेंस, राइट? सो हाँ। आपका जो कैरेक्टर है, आपने जो किरदार अपनाया है, जी तो वो आपके कैरेक्टर से आप जहाँ जीते हो जी वो डिफरेंस है कि वो ही है? जी ज़रूर difference? होता है। आप, मैं समझा आपकी बात। जी। उसमें डिफरेंस ज़रूर होता ही है, लेकिन जैसे अभी अवनी भी मुझसे जो बोल रही थी कि मैं एक बात से वाकिफ़ रखूँगा, एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपकी ज़िंदगी का बहुत सारा अंश होता है जो कि आपके किरदार के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, और काफ़ी जी। सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं डिस्कवर करते हैं। जब एक एक्टर के पास एक किरदार आता है तो वो उस किरदार को बिल्कुल जन्म से अब तक की उसकी जीवनी लिखता है, कि कहाँ पैदा हुआ होगा, कैसे माहौल में पैदा हुआ, इसके माँ बाप कौन थे, घर बार कैसे थे, आर्थिक स्थिति कैसी थी, और उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ी मोमेंट दर मोमेंट आप इकट्ठी करके एक कहानी बनाते हैं जिसकी वजह से वो किरदार आपके सामने प्रेजेंट होता है। ये मोमेंट्स जो होते हैं ये हमें स्क्रिप्ट के अंदर से मिलते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिसिंग जॉइंट्स लगते हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में से उठा उठा के डालते हैं ताकि आप उस किरदार को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकें। मतलब आप जो फिल्में देखते हो वो ही रियल लाइफ में हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक फिक्शनल चीज़ बनाते हैं और कुछ अपना उसमें डालते हैं, तो ये दोनों का मिक्सचर है। लेकिन जब ये किरदार करके आप बाहर निकलते हैं तो आप एज ए पर्सन बहुत ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी वो कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो किरदार आपको देके चला जाता है। सो ये बहुत लेन देन का इसका कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं यही हूँ या ये नहीं हूँ, कुछ बीच का एक चीज़ है जो आपके साथ होती है, और ये एक्सपीरियंस है जो कि ज़िंदगी में आपको मज़ा दिलाता रहता है। आप हर वक्त, हर फिल्म के बाद मैं थोड़ा बदलता हूँ, थोड़ा मेरे किरदार बदलते हैं, थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस बदलता है। और ज़िंदगी जीने का भी तो यही नाम है ना, कि आप बस एक्सपीरियंस करते जाएं, इकट्ठा करके क्या जाएंगे। वो तो कहावत सुनी है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऋतिक साहब ने कहा है अपने डांस में। तो डायरेक्टर्स के साथ बात करेंगे हम। आपने ये तो फिल्म बता दी, व्हाट इज़ द नेक्स्ट चॉइस इन योर लाइफ कि ये ऐसी फिल्में भी आ सकती है यहाँ पे? देखिए, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के नाते सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जो है वो कंटेंट ड्रिवन फिल्में बना रहे हैं, तो कंटेंट फिल्मों को बढ़ावा देना पब्लिक का काम है। अगर आपको पसंद आ रहा है, आप बड़े बड़े स्टार कास्ट, बड़े बजट की फिल्मों के ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद वो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं एक के बाद एक। तो अगर आप छोटी फिल्मों को सिर्फ स्टार्स वैल्यू के साथ देखना चाह रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कंटेंट जो है कहीं ना कहीं मिस करते जा रहे हैं। जी। तो इस फिल्म के अंदर से मेरा एक प्रयास ये रहा है कि एक अच्छी साफ सुथरी कंटेंट ड्रिवन 100% कॉमेडी जो शुरू से फर्स्ट सीन से लेकर लास्ट सीन तक आपको मिले, आप घर जाएं तो हंसते हुए जाएं, जो आप स्ट्रेस लेके जी रहे हैं आज की ज़िंदगी में वो स्ट्रेस ना मिले। और ऐसी यकीन मानिए बहुत स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, उनको शायद कहीं ना कहीं स्टूडियोज़ और इनकरेजमेंट और बजट्स नहीं मिल पाते। अगर वो चीज़ें आप लोग बढ़ावा देंगे
तो हमारे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। अब देखिए 22 तारीख को 14 अक्टूबर 2022 को हमारी फिल्म देखिए, अपने आप जज करिए कि आपको कैसी लगी फिल्म। आई एम श्योर जो मैं कह रहा हूँ वो आपको ज़रूर मिलेगी। लाइफ में टर्निंग पॉइंट तो आता ही है, आपने भी बताया, जैसे विक्रम ने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे ट्विस्टिंग पॉइंट होते हैं, जैसे इस फिल्म में भी हो गई, क्योंकि जैसे कैरेक्टर किरदार होता है उसके साथ ही बहुत सारा बताया जा सकता है। डायरेक्टर के साथ ये भी क्वेश्चन है, जब जब कंटेंट की बात आती है तो आप इस फिल्म में से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो फिल्म तो हो गई है पर मैसेज क्या मिलता है, लोगों को क्या कहना चाहते हो आप? देखिए हर फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ मैसेज होता है, अब वो कैसे दिया जाता है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारी फिल्म के अंदर एक बहुत ही सिंपल मैसेज है, वो है प्रेम का मैसेज। दो दुश्मन कंट्रीज जो हम अपने आप को दुश्मन, क्या हम दुश्मन हैं एक दूसरे के? मुझे नहीं लगता हम दुश्मन हैं। शायद वो दुश्मनी सिर्फ बॉर्डर्स पे दिखती है या पॉलिटिकली दिखती होगी। ये फिल्म पॉलिटिक्स पे है ही नहीं, किसी तरीके से पॉलिटिकल फिल्म नहीं है। ऊपर से जो है हमारा मैसेज, वो यूथ जो है एक प्यार का मैसेज, आपस में खुशियाँ बांटने का मैसेज, एंड हाउ टू लिव यू नो इन प्रॉस्पेरिटी, हैव फन, एंजॉय। क्योंकि अगर हम दो कंट्रीज का कल्चर देखें और हमारा रहन सहन का तरीका जो है, तो वो कुछ फर्क तो है ही नहीं। और पाकिस्तान है क्या, हिंदुस्तान से ही तो निकला है बाहर। ये गदर में आपको बोला लगता था कि जब ये स्टोरी आपने सुनी, आपको पता था ये नेम भी रखा जा सकता है, तो फिर ये मोदी जी की बेटी, लगता था तब कि ये कंट्रोवर्शियल होगा कि नहीं? क्या सोचा था आपने जब आपने फर्स्ट टाइम ये नेम सुना था आपने? कंट्रोवर्शियल तो आज भी नहीं है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी की बेटी का नाम, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। मैं कुछ बोलूं? जी 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 जी, ये जरूर ऐसा दिमाग में आता है कि किसी के, मतलब ये तो किसी की इंटरप्रिटेशन पे भी हो सकता है जी, और किसी शख्स को ये जरूर लग सकता है कि थोड़ी भाई कंट्रोवर्सी या थोड़ा हाइप क्रिएट करने की कोशिश की है क्या। बट जब हमने भी, जब अवनी की लिखी हुई स्क्रिप्ट मैंने भी पढ़ी थी, तब ये ऐसा कुछ अगर मुझे कभी लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि अगर मोदी जी की बेटी इस फिल्म का नाम नहीं होता तो इस फिल्म का नाम कुछ और होता ही नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट का बेसिस ही इसी बात से होता है कि उन्हें मोदी जी की बेटी के तौर पे मिस आइडेंटिफाई किया गया था, और वहीं से कहानी का जर्म पैदा होता है, वहीं से कहानी का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। राइट, एक्चुअली द फिल्म इज अबाउट अ मिस्टेकन आइडेंटिटी। एग्जैक्टली, मतलब एक नाम की वजह से एक इंसिडेंट होता है, कहानी बनती है, और वो नाम की वजह से ही उसको किडनैप किया जाता है। तो इसकी पूरी फिल्म का जो अंदर पूरे चक्कर है वो एक नाम की वजह से है, और तो इसीलिए इस फिल्म का नाम उस नाम से इंस्पायर होना बहुत जरूरी था। तो मोदी जी की बेटी से टाइटल इसका हो ही नहीं सकता था। तो दैट्स लास्ट पॉइंट कि यही लास्ट ऑप्शन है हमारा कि यही नेम रखना है। हाँ, और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है भाई। अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और नाम हमने नहीं, मीडिया ने दिया। राइट। तो अगर कंट्रोवर्सी भी है तो वो मीडिया के दिमाग, क्योंकि तो किया भी मीडिया ने ही कंट्रोवर्सी की थी जब वो नाम की हुई थी तब, और अब आगे मीडिया ने तो हमें, हमारी फिल्म को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आई एम हैप्पी। आप ही की जिम्मेवारी बनती है कि कंट्रोवर्सी ना हो। इंडियन मीडिया को हमें एक साइलेंटली वो क्रिएटिव डायरेक्टर का बिरुद देना चाहिए। ये पूरा जो क्रिएशन है उसके पीछे आप लोगों की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है। अवनी, आप नेक्स्ट टाइम पे क्या किरदार करना चाहती हो? क्या अभी भी आपको हो रहा है कि ऐसी स्टोरी आपके लाइफ में आनी चाहिए, ऐसी स्टोरी आपको मिलनी चाहिए मूवी के लिए? फाइनली क्या चाहते हो? मैंने तो अभी कुछ चंद फिल्में की है, मैंने ज़्यादा काम किया नहीं है इंडस्ट्री में, तो मेरी जो हंगर है, वो आर्टिस्ट हमेशा बहुत भूखा रहता है जी। खाने की बात नहीं है, काम की बात है। तो वो जो काम की भूख रहती है ना, वो एक्टर को हमेशा नया नया इंटरेस्टिंग करने के लिए इंस्पायर करती रहती है। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर एज अ एक्टर और ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है, और मुझे अपने आप को और ज़्यादा डिस्कवर करना चाहिए एज अ एक्टर। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपनी रियल लाइफ से हटके बहुत सारे नए नए किरदार निभाऊँ,
वैसी कहानियाँ जो मैं सोच नहीं सकती, जिसका मैं हिस्सा कभी रियल लाइफ में मैं बन नहीं सकती, ऐसी कहानियों को मैं अपने किरदार को मैं निभाना चाहूँगी। और हर एक एक्टर की ना लाइफ में एक ख्वाहिश ज़रूर होती है, मेरी भी है, कि मैं किसी बायोपिक का हिस्सा बनना चाहूँगी। मैं किसी रियल लाइफ कैरेक्टर की बायोपिक ज़रूर करना चाहूँगी। ये अभी रियल लाइफ की बायोपिक की तो आपकी नहीं है ये मीडिया वालों की बायोपिक हो गई। आपने कोई बुक्स रीड की थी, उसके दौरान आपने ये सोचा कि बायोपिक करनी चाहिए, ऐसे किरदार करने चाहिए, या कुछ माइंड में ऐसा आया था कि तब आपने डिसाइड किया कि बायोपिक फिल्म मिलनी चाहिए आपको? नहीं, ये क्या होता है कि अपने देश में या पूरे दुनिया में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, रियल लाइफ इंसान हैं, जिनकी लाइफ जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है, और उसके ऊपर वो लाइफ जर्नी को लोगों, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, उस जर्नी से इतनी सारी इंस्पिरेशन लोगों को मिलती है कि कहीं ना कहीं आज के यूथ को ये मैसेज भी देना ज़रूरी है कि आगे कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, यू नो। बिकॉज समटाइम अगर कोई इंसान किसी भी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, तो सक्सेस मिलने के बाद ना उनके एफर्ट्स को, उनकी स्ट्रगल को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया जाता है। और फिल्म इंडस्ट्री में तो खास करके एक लक नाम का फैक्टर है, उसके ऊपर वो सब कुछ डाल दिया जाता है कि अरे तो लक था, इनका चल गए। वो लक जो है ना, उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल है, हार्डवर्क है, डेडिकेशन है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो ऐसी बहुत सारे लोगों की बायोपिक है जो मुझे लगता है कि बहुत देश के सामने लानी चाहिए, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर हो, चाहे वो रियल लाइफ में अभी एट प्रेजेंट जिंदा इंसान की बायोपिक हो। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को हम इंस्पायर करें। एंड कमिंग टू द फीमेल बायोपिक्स, उसके लिए क्या होता है, अगेन मैथमेटिक्स आ जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, कि अगर आप किसी फीमेल के ऊपर बायोपिक करना चाहते हैं तो एज अ एक्टर आपके कंधे पे फिल्म बेचने की ताकत आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर बायोपिक माउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एज अ एक्टर आपके नाम पे बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है, आपके बल पे टिकट्स बेचना बहुत ज़रूरी है। और ये बिना कुछ सोचे हमने तो मोदी जी की बेटी बना दी है ये सोच के कि हमारे कंधे उतने मजबूत ज़रूर है, और जिसको ये हमारे विक्रम और पितोबाश ने मुझे उठाया है, वो ट्रेलर में भी आप देख सकते हैं। तो अगर ये कंधा आज मजबूत कर दिया आप लोगों ने और हमें धक्का दे दिया, सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ा दिया, तो आगे बायोपिक भी ज़रूर करना चाहेंगे। विक्रम जी, आप कौन से किरदार करना चाहते हो फ्यूचर पे? इनफैक्ट हर एक्टर के लिए ये काफ़ी वैसा वाला सवाल है कि और क्या क्या और मतलब, क्या माइथोलॉजी, बायोपिक, कौन सी? इट्स नेवर एंडिंग। इट्स नेवर एंडिंग। मैं सब कुछ करना चाहूँगा जो अभी तक नहीं किया, और जो कर चुका हूँ उसको रिपीट नहीं करना चाहता। सो सॉरी, मेरे आंसर्स कभी ब्लैक एंड वाइट में हो नहीं पाते क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि बीच का कोई रास्ता होगा। पढ़ाई में भी ऐसे ही होता था मेरे साथ मैं बीच का रास्ता निकाल के भाग जाना चाहता था। खैर, पर हाँ, मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले भी कहा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस। जीना मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस का ही एक तरीका है, और एक्टिंग जीवन जीने से बहुत जुड़ती है। तो एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे कर सकते हैं। और एक्सपीरियंसेस का तो ये है जिस वजह से लोग ट्रैवल करते हैं, जिस वजह से लोग अलग अलग जगह पे जाके खाना खाते हैं, अलग अलग हॉबीज़ रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और ह्यूमंस इस तरह के जीव हैं कि वो उनको एक्सपीरियंसेस, नए नए अनुभवों को इकट्ठा करने में बड़ा मज़ा आता है। तो मेरा भी शायद यही ट्रिप है जिसकी वजह से मैं एक एक्टर हूँ, और जितना मुझे मिलेगा अलग अलग एक्सपीरियंस करने के लिए, जो मैं नहीं हूँ या जो मैंने होते हुए देखा है या जिसको मैं इमेजिन करके सोचूं कि मैं ऐसा हो सकता हूँ, हो सकता है मैं चाहूँगा कभी मुझे एक बहुत बॉडी बिल्डर रेसलर का भी वो मिले, क्योंकि मैं उसी बहाने बॉडी बनाऊंगा और समझ में आएगा कि भाई इनकी क्या परेशानियाँ होती होंगी, एक पहलवान किस तरीके से जीवन जीता होगा। और हो सकता है कभी एक ऐसा किरदार जो बिल्कुल गरीबी में है, बहुत ही आर्थिक स्थिति जिसकी ख़राब है और ग्रिम बहाव से अपना जीवन जी रहा है, एक बहुत ही नॉर्मल कॉमन आदमी जिसकी बहुत मुसीबत है, मैं इस तरीके का किरदार भी करना चाहूँगा, पर ऐसा जिसका एक्सपीरियंस मुझे एनरिच करे एज अ पर्सन। एडी साहब, फ्यूचर में कौन सी फिल्में आनी चाहिए, किस कंसेप्ट पर? कॉन्सेप्ट कोई भी हो, कॉन्सेप्ट इज समथिंग व्हिच यू नो हैज बीन एग्जिस्टिंग फॉर एजेस एवर सिंस सिनेमा टुक बर्थ। सो all the films that we have seen till today have eventually been based on a particular concept. तो concept कुछ भी हो, but personally
जैसे विक्रम ने कहा, वो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग शेड्स करना चाहेंगे। एक डायरेक्टर के नाते, एक फिल्म मेकर के नाते, डेफिनेटली I would personally love to do films which have good content for sure, good storytelling, and something which is absolutely, mind-boggling for the audience. It should be something new that creates something as a path-breaking film, maybe, or a new experience. or a new experience for the audience. Somewhere down the line, I would always want to do. We have been working on some scripts. Hopefully, one of these days, a producer may like something and may want us to back on that subject. अवनी, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में? इस फिल्म का एक्सपीरियंस तो बड़ा ही जानदार, शानदार और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ हमने इस फिल्म को शूट किया है। सो बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप एक पहली फिल्म एज अ राइटर, एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी फिल्म नहीं, छोटी फिल्म जिसके अंदर बजट लिमिटेशंस होते हैं, बजट कंस्ट्रेन होता है, तो आपकी टीम का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। एंड हम एज अ प्रोड्यूसर काफ़ी लकी फील करते हैं कि हमें अच्छी सपोर्टिव टीम का साथ मिला, कास्ट एंड क्रू बोथ, जो कि इस फिल्म को अपनी खुद की फिल्म मान के इस फिल्म के साथ जुड़े हैं। और वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मेरा काम इतना ही है, इससे बाहर का काम मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। हर कोई हर एक डिपार्टमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, हर एक ने हर एक एंगल पे, हर एक जगह पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस फिल्म को बनाने में। और लास्ट में मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि जब हम पहाड़ों में शूट कर रहे थे तो जितने खूबसूरत दिखते हैं पहाड़ उतने होते नहीं हैं। पहाड़ों में शूटिंग करना इतना आसान होता नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो वैसे चैलेंजेस में भी हमें वहाँ के लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, और वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सब ने हमें बहुत ही सहयोग दिया। तो एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम वर्क। और मुंबई से बाहर निकल के जब हम किसी रिमोट एरिया में शूट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि भारत का हर आदमी अपनी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, वो प्यार करते हैं। बस फिल्म इंडस्ट्री वाले ये कब समझेंगे और कब सीखेंगे पता नहीं, ताकि वो लोग भी हर फिल्म को उतना ही प्यार दे और उतनी ही मेहनत के साथ बनी हुई हर फिल्म को वो लोग सपोर्ट करें। बट इवेंचुअली वो टाइम आ जाएगा जब फिल्म के अंदर एक्टर्स नहीं, कंटेंट चलेगा। और फिल्म के अंदर जब आप किसी फिल्म को बेचने जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि कौन है फिल्म में, ये पूछा जाएगा क्या है फिल्म में। तो ये कौन से क्या का डिफरेंस बहुत जल्द मुझे लगता है हम कवर कर लेंगे। बिल्कुल। या एंड उसके अलावा तो बस मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जितना प्यार हमारी फिल्म के मेकिंग के दौरान हमें दिया है और आगे भी देते रहेंगे, हमें बहुत ही भरोसा है। तो हमारी फिल्म को आगे बढ़ाइए। और ये आप लोगों में से किसी ने अगर कोई फिल्म बनाई होती, मान लो गुजरात के किसी छोटे शहर में अगर बैठा हुआ कोई राइटर अगर सोचेगा कि मुझे फिल्म बनानी है, कोई एक्टर या डायरेक्टर सोचता कि मुझे फिल्म बनाना मेरा सपना है, तो आपकी जो जर्नी रही होती, हमारी जर्नी सेम वैसी ही रही है। हमने सारी वही मुसीबतें और अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं। तो मोदी जी की बेटी एक्चुअली एक कॉमन मैन की फिल्म है और कॉमन मैन द्वारा बनी हुई फिल्म है, और ये कॉमन मैन लोगों के लिए फिल्म बनी हुई है। तो हम चाहेंगे कि जनता इसको बहुत सपोर्ट करे। और ये अवनी मोदी, विक्रम कोचर, एडी सिंह, वो आप ही में से कोई एक है जो अपने सपने लेके मुंबई आए थे और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये एक फिल्म चलती है, एक मोदी जी की बेटी एक सक्सेसफुल होती है, तो आगे बहुत सारे आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत बात होती रहती है और अभी तो वक्त कम है हमारे पास। ऐसा हो गया, अभी तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी करने बाकी है, पर क्या करें, वक्त कम है। आप ત્રણે ઉપસ્થિત રહ્યા KTV ન્યૂઝ ગુજરાતીના સ્ટુડિયોમાં, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ। દર્શક મિત્રો, આપે પણ જોયું કે અવની મોદીએ તે ઉપરાંત વિક્રમે ખાસ કરીને મહત્વની ચર્ચાઓ કરી છે, તે ઉપરાંત ડિરેક્ટરે આજે ચર્ચા કરી છે। તેમણે એક નજીવી બાબત કહી છે કે જે પ્રકારે ફિલ્મને લઈને તેમણે ચર્ચા કરી કે ડિરેક્ટર જ્યારે ફિલ્મને લઈને ચર્ચા કરે છે, તે ઉપરાંત હવે કન્ટેન્ટ કેવો પીરસાશે, કારણ કે હવે તો એવો ટ્રેન્ડ આવી ગયો છે, ફિલ્મ જોવા જઈએ તે પહેલાં એક્ટર આ હશે તો જોઈશું અમે મૂવી, પરંતુ કન્ટેન્ટ લઈને જ્યારે પ્રેક્ષકો જાય મૂવી જોવા માટે તેની રાહ જોવાઈ રહેશે। આવી જ રીતે અલગ અલગ કલાકારો સાથેની મુલાકાત તો જોવા જ મળશે। અત્યારે મને રજા આપશો। आप जोता रहो KTV न्यूज़ गुजराती, समस्या तमारी, खबर हमारी। नमस्कार।